गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपकी गोबिंद दियो दिखाए. Good evening, everyone. With these timeless words of Kabir Das ji, we begin today's gathering, a reminder that the Guru is the guiding light who leads us to truth, wisdom, and purpose. Today is not just a celebration of a birthday, but a celebration of a life that has quietly and profoundly shaped so many others. A life that has not only imparted knowledge, but has nurtured curiosity, instilled discipline, and inspired us to think beyond boundaries. We have gathered here across screens, yet connected by a shared sense of gratitude to celebrate Sir's Professor Ajay Kumar Singh's birthday, our mentor, our guide, and for many of us, a constant source of strength and direction. Each one of us carries a story, a moment when Sir's words, encouragement, or even a gentle correction altered the course of our thinking, our research, and sometimes even our lives. Today, this space is for those stories, for those reflections, and for expressing what often remains unsaid in the rush of deadlines and discussions. Let us begin this celebration with warmth, gratitude, and heartfelt memories. I would request my friend Dr. Mani Goswami ji to please help me take forward the proceedings of this session. So, Angan. Ji Mani ma'am. Indeed, this is a very special occasion that Sir has given us this opportunity to celebrate his birthday today with him by sharing the ways that he made us feel empowered whenever we felt low, whenever we felt stuck. And as Kangan said, we all have our stories. So let us start by inviting Hina ji to share her experience and how Sir has made her path more clear, guided her. And yes, Hina ji, please share your नमस्ते story. नमस्ते डॉक्टर अजय सिंह सर, उनके साथ मेरा इंटरेक्शन 2008 में हुई फर्स्ट टाइम. दैट वाज, आर यू एबल टू हियर मी? Yes. Okay. So first it was maybe 13th of August 2008. My husband went to their university. Just huh? Just a minute, just a minute. हाँ, अच्छा. So पहले मिस्टर नायक Yeah, शुरू करेंगे. we some other met in 2008, maybe 10th or 11th, 10th August. But the second meeting was important. We met on 14th of August 2008 at the Institute. That was a very memorable day. We had a lot of discussions and we were arranging some talk and other things, and he was the main organizer. But there he has told me something. Then we, after the end of the day, and we found it is coming exactly. Then my wife was having some problem, physical problem, health problem. Then Madam, with Dr. Mrs. Singh, and she treated. That time also Dr. Singh told it will generally doesn't take 4 to 5 sittings, but he told it will take this time showing around 20-25 sittings, and it took really 20-25 sittings. And she is now in good shape, and from time to time, any problem, she consult him even without telling me. So now I hand over to her. थैंक यू. सो वही रहा, जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया, हीलिंग्स देना शुरू किए, मैडम ने भी दिए. उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने काफ़ी हीलिंग्स दिए हैं. जब भी जैसे आपने कहा कि जब लो लगता था तो उस टाइप हम क्या करते थे, डॉक्टर साहब को मैसेज कर देते थे. फ़ोन नहीं करते थे, डिस्टर्ब करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो मैसेज कर देते थे. उसके बाद ब्लेसिंग्स आ जाती थी और ऑटोमेटिकली आई कुड फील कि कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं. हम वो समय का जो था एक्सपीरियंस, वो तो काफ़ी लंबा चला. उसके बाद हम बता रहे हैं
जब भी हुआ है, जब मेरे कोई फिजियोथेरेपी, मेरा बैक का प्रॉब्लम था, तो बैक का प्रॉब्लम से जब फिजियोथेरेपी टैबलेट्स कुछ भी काम नहीं करता था, तब फिर हम डॉक्टर साहब को फिर डिस्टर्ब करते थे और उसी से मुझे फायदा हो रहा था। मैं ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी, बस एक लास्ट ईयर का एक इंस्टेंस बता रही हूँ। जुलाई में मेरा एक नी का कुछ प्रॉब्लम हुआ, फिर मेरा हाथ में फ्रैक्चर हो गया और ऐसे ट्विस्ट हुआ नी कि हाथ में फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद वहाँ पे बॉम्बे में तब थे, वहाँ पे फिजियो किए, सब कुछ किए, डॉक्टर साहब को शुरू कर दिए बोलने के लिए, डॉक्टर साहब हीलिंग्स दे रहे थे। तब जो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने के बाद बॉम्बे से मुझे नोएडा आना था, तो फिर बेटा ने राजी हुआ, बोले कि ठीक है आप जा सकते हो तो जाओ। बहुत लड़ झगड़ के फिर आ रहे थे, फिर फ्लाइट में बैठे, अचानक बहुत पेन। हम सोचे कि अब क्या करें, 2 घंटा का जर्नी बॉम्बे से दिल्ली का, तो फिर क्या करें। फिर हम टेक्स्ट किए, बोर्डिंग हो गया था, सब कुछ हो गया था, इतना पेन, बैठा ही नहीं जा रहा था। फिर डॉक्टर साहब को टेक्स्ट किए, कुछ देर बाद मुझे पता नहीं पेन गायब। जब उतर रहे हैं तब डॉक्टर साहब का मैसेज आया था, जो हम स्विच ऑफ कर दिए थे फ़ोन। डॉक्टर साहब का मैसेज आया कि आपका सारा चक्रास बंद था, उसको हम खोल दिए हैं। जब कुछ देर के बाद, ये मैसेज तो हम तो बाद में उतरने के बाद पढ़े, जब पेन नहीं हो रहा था, फिर हम सोचे अचानक गायब कैसे हो गया। तो ये भी एक एक्सपीरियंस है कि हर समय हम मैंने ग्रैटिट्यूड कैसे बताएंगे, क्या बोलेंगे, वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन रियली कुछ तो है जो हम मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अभी भी डॉक्टर साहब को जब भी हमको कोई भी परेशानी, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, कुछ भी लो लगता है, तो उन्हीं को ही डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से बाकी आगे सुनेंगे। मेरा तो बहुत लंबा स्टोरी था 2008 वाला तो उससे तो उभर के निकल रहे हैं। जब भी होता है तो वही डॉक्टर साहब का पास फिर जाना पड़ता है। पता नहीं अब आगे क्या है। जैसे हम सुन रहे थे कि मैंने हर इच्छा जो है वो आगे पता नहीं डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे, और उनके पास जो एंटीना है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि एक इंस्टेंस था, हम गए थे श्री श्री रविशंकर यूनिवर्सिटी में गए थे, वहाँ पे आप मनी जी को मिले थे। वहाँ पे देख रहे थे कि हमारा एक प्रॉपर्टी था उड़ीसा में, उसको बेचना था, डील वगैरह हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो डॉक्टर साहब को पूछे, हम बोले कि ये कब तक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा अभी तो दिख नहीं रहा है। 5 साल बाद वो डील हुआ क्योंकि उस समय लगा कि अरे बायर आ गया, रेट फाइनलाइज कर दिया, सब कुछ हो गया, अब तो डेट ही खाली देना है रजिस्ट्रेशन का, बस उतना ही। लेकिन वही ये सब चीज, ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं हैं। अभी रिसेंटली बॉम्बे में प्रॉपर्टी लेना था, फिर हम डॉक्टर साहब को पूछे, हम बोले कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी मेटलाइज नहीं कर रहा है, एक जगह में एडवांस दे दिए हैं, लेकिन फिर भी वहां पे वो जाने के बाद मुझे पसंद ही आ रहा है, क्या करें। हम बोले कि डॉक्टर साहब आप जरा देखिए अभी बॉम्बे में होने का है या नहीं, और नोएडा का घर बेचना है हम सोच रहे हैं, तो क्या करें। तो फिर बोले कि अभी बॉम्बे होगा नहीं, और बोले कि नोएडा घर भी अभी नहीं बिक रहा है, दिख नहीं रहा है अभी तक। कितना महीना हो गया, 6-8 महीना हो गया है, अभी तक बॉम्बे का फाइनलाइज नहीं हुआ है। जो पहले एडवांस दिए थे वो भी गया तो अभी इंतजार कर रहे हैं कब डॉक्टर साहब बताएंगे कि अब होने वाला है कि नहीं। यही है, तो कुछ है जो वही बता सकते हैं, और गुरुजी बता सकते हैं क्या है, कुछ नहीं समझ में आता है, बस यही। चलिए ठीक है, मनी जी आप अभी आगे दूसरों से भी सुनना चाहेंगे हम। चलिए। बहुत बहुत थैंक यू हिना मैम एंड सर आपको। आई एम श्योर वी आर ऑल eagerly waiting to share our stories. So, यस। with permission, sir, may I start? So, last 4-5 years have been very challenging for me at a personal and a professional level. And मतलब मुझे नहीं पता, जब मैं अपने जॉब के इंटरव्यू में बैठी थी, all kinds of nervousness was there. And मतलब it somehow just so happened when I entered the room, I saw sir on the opposite side.
एंड फॉर अ मोमेंट इट फेल्ट एज दो टाइम रुक गया है, मतलब मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई। जो मुझे नर्वसनेस थी कुछ पता ही नहीं चला, और फिर जैसे ही मैं रूम से बाहर निकली इंटरव्यू देने के बाद, again that nervousness, the heartbeat started rising again. So there was something in sir's aura, there was something in that presence which was just so strong कि मेरी नर्वसनेस, मेरा संशय लेके अच्छा होगा नहीं अच्छा होगा इंटरव्यू, मैं सही बोलूंगी मैं गलत बोलूंगी, वो सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद एट अ फैमिली लेवल हमारे कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे काम को लेके। तो मैं और मेरे हस्बैंड अक्सर सर के पास बहुत बहुत टाइम बैठते थे। तो हम जिस जिस दौरान हम सर के पास बैठते थे, वी वुड फॉरगेट एवरीथिंग। और हमें होता था, मतलब ऐसा कई बार हमें लगता था वी आर रियली एनक्रोचिंग अपॉन सर्स पर्सनल टाइम ऑल्सो, कि हमें उठने का मन ही नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम के लिए, उस 1-2 घंटे के लिए हम भूल जाते थे हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है। एंड सर के साथ रह के हमने एक चीज सीखी है, sir is not an obstructionist, and sir just, he tells us and me particularly, because I had a habit of holding on to things. सर बोलते थे जस्ट लेट इट गो, जब तक आप छोड़ोगे नहीं वो आपको नहीं छोड़ेगा। तो मतलब आई थिंक द बिगेस्ट लर्निंग दैट आई हैव टेकन फ्रॉम सर इज जस्ट लेट इट गो। एंड until I mean I began my PhD, and in the beginning I felt कि भाई इससे बड़ा कुछ नहीं है जीवन में। And I remember having this conversation with sir, मैंने अपना टर्म पेपर से पहले जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, मैंने लास्ट एग्जाम दिया, मैंने सर को रूम में बोला, मैंने कहा सर आई एम सो हैप्पी टुडे, मुझे लाइफ में अब कोई और एग्जाम देना नहीं है। सर ने कहा तुम्हारे एग्जाम्स अब शुरू हुए हैं, लाइफ जब एग्जाम्स लेगी तब एक अलग सिनारियो बनता है। तो मतलब इस जर्नी के दौरान मैंने ये सीखा है। अब सर के साथ मुझे पीएचडी की टेंशन नहीं है। अब मुझे ये नहीं है कि पीएचडी सबसे बड़ी डिग्री है, मतलब लाइफ इज फार मोर देन जस्ट दिस डिग्री। एंड अब मैं, जब मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया, आई मीन आई वुड टेल एवरीबडी, मैं 3 साल के अंदर पीएचडी खत्म करूंगी। आज मुझे 3.5 साल हो गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जल्दी करने की कोई जल्दी नहीं है अब। मुझे ये लगता है कि मेरी जब तक पीएचडी चलती रहेगी, मैं सर के साथ, वो सैटरडे मीटिंग्स चलते रहेंगे, किसी ना किसी बहाने मैं सर के साथ रहूंगी। तो आई थिंक अब मुझे पीएचडी हवा नहीं लगती है। मुझे लगता है लाइफ में जो भी अच्छा है, मतलब डोंट गेट एरोगेंट अबाउट इट, बिकॉज दैट्स नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। बुरा है, डोंट होल्ड ऑन टू इट, बिकॉज अगेन दैट इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। सो सर का वो आनंदमय कोश जो हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, तो उससे मैं भी ये सीखती हूँ कि ठीक है, जो भी अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, ठीक है, दिस फेज विल गो, जस्ट ट्राई टू बी हैप्पी। एंड सर हमेशा कहते हैं कि आपकी इनर पीस आपके पास है, नो बडी कैन चेंज इट, ऑल्टर इट, अफेक्ट इट। तो आप ये कहो कि सर ये मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे परेशान कर रहा है, कोई 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 किसी को परेशान नहीं कर सकता। आप परेशान होना चाह रहे हो इसलिए आप हो रहे हो। सो योर पीस इज विद इन यू। एंड आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, मैं और भी बोलूंगी अभी। तो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ माई पीएचडी, सर कॉन्स्टेंटली मुझे बोलते थे आप क्रिया करो, यू नीड क्रिया, प्लीज डू इट। ही वुड टेल माई हस्बैंड ऑल्सो। हम शुरू में वी डिड नॉट, मतलब ठीक है हाँ बड़े हैं बोल दिया रिस्पेक्टफुली, हमने हाँ बोल दिया, बट कभी वो अंदर से ड्राइव नहीं आया। फिर अगेन वी वुड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद सर, सर के घर में हम बैठे ही रहते थे। तो पता नहीं एक बार क्या हुआ, एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस प्लेटफॉर्म to say, I mean, I'm honored to say this, that Sir ke bete Aditya ji is just a young version of Sir. So the positivity and the calm that Sir gives to everybody around him, I mean, I sense the same vibe with his son also. So I mean, he also has that kind of potential कि वो, he can uplift you from a difficult place and place you better. So now I would say, having doing Kriya for 2 consistent years, me and my husband, life is not the same again, and it is much more beautiful. And I did not see myself 2 years back ever saying that life is beautiful. आज कुछ भी होता है, मतलब किसी से डांट पड़ गई, कुछ गलती हो गई मेरे से, आई वुड स्टिल वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से टू माई सेल्फ लाइफ इज ब्यूटिफुल, एंड इट इज एक्चुअली ब्यूटिफुल। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, इंडेटेड टू सर कि सर ये खूबसूरती महसूस करने की क्षमता आपने हमें दी, दैट मीन्स अ लॉट। एंड गुरु, मतलब हम लोग भी टीचर्स हैं, हम भी पढ़ाते हैं, पर सर हमें जैसे हमारी सैटरडे की स्कॉलर्स मीटिंग होती हैं, सर हमें बोलते हैं गुरु शिष्य रिश्ता ट्रांजैक्शनल नहीं है, एंड इट इज नॉट time bound. So if I am your guru, I will take you through every phase of your life. And honestly, sir has taken us, he's helped me professionally, he's helped me personally, he's helped me at a personal level. But I cannot think of proceeding ahead without sir's guidance.
कुछ भी होता है, कोई काम करना है नहीं करना है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है नहीं बेचनी, जैसे हिना जी ने कहा, हम सर को बोलते सर प्लीज एंटीना से पूछ के बताइए ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो यस, वी ऑल रिसीव्ड सर्स ब्लेसिंग्स. एंड एक और एक्सपीरियंस है, सर के साथ हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, 74th AICC. अप अंटिल दैट कॉन्फ्रेंस, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था कि मुझ में जरा सी भी कैपेबिलिटी है. आई मीन, आई वुड सेल्फ डाउट, आई वुड नॉट कम आउट. बट सर सुबह मैसेज डालते थे, ब्लेसिंग्स ऑफ श्री श्री रविशंकर जी सेंट. तो मतलब वो पावर रही. एंड नोइंग दैट सर इज देयर, हम बिल्कुल वो होते हैं बेबाकी से निडर होके हम बस चलते गए. हमें पता है कि सर है संभालने वाले. हम वो जो पतली रोप पे चलना होता है ना, हम लिटरली आंख बंद करके उस पतली रोप पे चल रहे थे, एंड देयर वाज सर ऑन द अदर साइड होल्डिंग दैट रोप फॉर अस. सो थैंक्स अ लॉट सर. मतलब आई डोंट थिंक वर्ड्स कैन डू जस्टिस to what you have done for us, and you are forever going to be that invaluable part of our lives. And a much thank you to you, and highly grateful to you, sir. And I would request, if somebody wants to share their experience or some learning that has had a profound impact on you, you may just raise your hand, or maybe you can just unmute yourself and start sharing. Sandeep, आप गुड इवनिंग सर. सर हैप्पी बर्थडे सर. थैंक यू, थैंक यू. आपका सर वीडियो ऑन करो तब बात करो. सर वीडियो हम्म. हो गया. हाँ. सर से मतलब सबको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना है. 2016 एमबीए फर्स्ट ईयर था हमारा. तो एमबीए फर्स्ट ईयर में जब हम लोग आए तो हमें हर टीचर, मतलब अब डीयू का एक ब्रांड था. जब बच्चे आए तो एक ऐसा कॉलेज जो मतलब एमबीए करने आए थे, एकदम डिफरेंट कॉलेज था. तो पर फिर भी जब सर की क्लासेस हमारे से स्टार्ट हुई तो सर हमें पढ़ाने आए. सेकंड सेमेस्टर से सर ने स्टार्ट किया और फोर्थ सेमेस्टर तक पढ़ाया. 3 सेमेस्टर थे सर के साथ. तो सेकंड सेमेस्टर जब सर पढ़ाने आते थे तो हमारी क्लास की कंडीशन ये थी कि हम लोग टीचर, मतलब मैं तो नहीं करता था पर मेजोरिटी क्लास हमारी स्किप करती थी. पर सर की क्लास ऐसी होती थी, जब सर की 9 बजे क्लास होती थी एग्जैक्ट, और वो ये होता था कि 9 बजे जो क्लास में आ गया सर मोबाइल पे अपने अटेंडेंस लेना स्टार्ट करते थे. जो 9 बजे 9:05 तक आ गया उसको लास्ट तक अटेंडेंस मिलती रहेगी. और उसके बाद जो आया तो सर बोलते थे पढ़ाई चल रही है पढ़ लो, पर अब अटेंडेंस नहीं मिलेगी. पर फिर भी बच्चे आते थे, ऐसा नहीं था कि ना आए. फिर भी सर की क्लास में हम लोग की पूरी क्लास फुल होती थी. 60 बच्चे होते थे, 57 बच्चे होते थे क्लास में. 3 सेमेस्टर हो गए. सेकंड सेमेस्टर के बाद सर जून में आई गेस सर दुबई गए थे. तो जब एंड मतलब लास्ट क्लास थी तो सर हम लोगों से बोलते हैं बाय, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब आपको कोई और टीचर नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाएगा. तो हम लोग को लगा ठीक, मतलब अच्छा था और एक सेमेस्टर सर ने पढ़ाया था तो हमें लगा सही टीचर थे, चले गए, पता नहीं कौन पढ़ाएगा आकर. थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, इंटर्नशिप करके सब वापस आए तो टाइम टेबल में मिस्टर एक्स लिखा हुआ था. थोड़ी देर बाद अचानक से सर क्लास में आए, कहते हाय आई एम बैक. तो जो मूवीज में नहीं होता है उस टाइम से लगा कि सर तो सर दोबारा से आ गए. तो फिर एकदम से लगा तो मतलब सही जाएगी क्लास. तो मतलब और उसके बाद सर ये क्लासेस में एक सबसे अच्छी चीज ये होती थी कि हम जितने भी बच्चे थे, मतलब एमबीए वाले शैतान होते हैं ऐसा बोला जाता है, तो जितने भी थे तो सर की क्लास में ये होता था कि सर बोलते थे क्लास में पढ़ने नहीं आ रहे हो तुम लोग, फन करने आ रहे हो. तो हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे तो उनमें से जब सर बीच से किसी से भी उठा के पूछते थे क्या सीखा आज लास्ट में, सर लास्ट में हर क्लास के लास्ट में पूछते थे आज की लर्निंग क्या है बताओ. तो हमारे बीच में एक लड़का हुआ करता था, उसने खड़ा होकर बोला सर हम तो फन करने आते हैं, हमने फन किया है. तो अगली क्लास से सर उससे सबसे पहले उठते थे और बोलते थे ताली बजाओ. और ताली बजाने का एक ऐसा कल्चर था हम सब में कि वो सर की क्लास से ही सीखा. मतलब उससे पहले इंजीनियरिंग करी, एमबीए किया, तो पर कहीं पर भी कोई टीचर ताली नहीं बजाता था. पर सर बोलते थे अच्छा हो बुरा हो ताली बजा दो. तो ताली बजाने से पहले तुम्हारे मतलब अच्छा फील करोगे. तो वो एक अलग कल्चर था, एकदम अलग. मतलब सर की क्लास एकदम डिफरेंट थी. उसके बाद 2018 में एमबीए खत्म हुआ. खत्म होने के बाद सब इधर उधर गए. मैं कॉन्स्टेंटली सर के टच में रहा. सर शीशी चले गए थे तो सर से तब भी बात करता रहा. मैंने यूनिसन की जॉब छोड़ी, मतलब कुछ हुआ तो मुझे लगा कि अब नौकरी नहीं करनी. सर को मैंने फोन किया सुबह 7:30 बजे. तो सर ने फोन पिक किया. सर की कोई मीटिंग थी तो मैंने कहा सर मैं नौकरी छोड़ने जा रहा हूँ, मेरी आदत है कि मैं बात करता जाता हूँ. तो सर को पता, सर कहते शाम को बात करते हैं. मैंने कहा पर सर मैं जॉब छोड़ रहा हूँ. कह रहे शाम को बात करते हैं. सर ने फोन रख दिया. शाम को मैंने फिर फोन किया, मैंने कहा सर वो नौकरी छोड़ दी. सर बोलते रहे कि दिमाग खराब ये वो. मैं सुनता रहा. फिर उसके बाद
बात खत्म। फिर उसके बाद 2022 सर दिल्ली वापस आए अप्रैल में, और मार्च में मैंने सर को कॉल करा। मैंने कहा सर आप कब आ रहे हैं, क्योंकि एक कॉलेज में इंटरव्यू देने गया तो वहां पर उन्होंने बोल दिया कि एमबीए वालों को हम नहीं लेते हैं, अगर एमकॉम है तो आओ, एमबीए वाले नहीं पढ़ा सकते। तो मैंने कहा सर से कहा, मैं सर वो तो कहते हैं एमबीए वालों को लेते नहीं, तो कहते मत जाओ तुम इंटरव्यू देने। तो मैंने कहा सर आप कब आएंगे, तो कह रहे मैं आ जाऊंगा। उसी के बाद पीएचडी का इंटरव्यू दे रहा था, तो पीएचडी का इंटरव्यू मतलब डिपार्टमेंट में कुछ टीचर हैं, तो आर के सिंह सर उस समय डीन हुआ करते थे, तो कहते हैं तुमने बीटेक किया एमबीए किया तुम्हारा टाइम नहीं होगा। मैंने कहा सर आप आ जाइए तो ले लेंगे, वरना होगा नहीं मेरा एमबीए में, वो पीएचडी में। तो सर 22 अप्रैल में आए, फर्स्ट सेकेंड अप्रैल को, और पता नहीं मतलब मेरी सर से उससे पहले बात नहीं हुई थी। सर जैसे ही आए हैं उसी दिन मैं डिपार्टमेंट पता नहीं क्या करने आया, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मैंने देखा सर, तो मैं सबसे पूछा अजय सर ये ना ये, तो कहा अजय सर ये, और अत्री सर मिल रहे थे। तो मैं सर से गया, सर के पास बस मिला और मिल के निकल गया। तो मैं जून में मेरा रेलवे में हुआ, पर रेलवे में हुआ तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे मैं सबसे बोल रहा था, मैंने सर यहाँ आ गए तो मुझे रेलवे की नौकरी तो नहीं करनी, वरना फिर छोड़नी पड़ जाएगी नौकरी, क्योंकि मेरा मन लगेगा नहीं। तो मैंने सर से ही बात नहीं बताई कि मेरा रेलवे में हो चुका था उस समय, मैंने सर को बाद में ये बात बताई थी। तो पर फिर मैं इंटरव्यू देने गया, तो जब मेरा सेकेंड इंटरव्यू था दयाल सिंह इवनिंग में, तो उससे पहले मैं सर से मिलने गया। तो मैंने कहा सर इंटरव्यू कुछ पूछते तो है नहीं, तो तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो सर को मैंने मतलब सर ने हमें कभी डांटा नहीं, किसी क्लास में कभी डांटा। उस दिन सर एकदम से बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब, पढ़ाई नहीं करोगे, बिना पढ़े इंटरव्यू देने चले जाओगे। तो मैंने कहा नहीं सर मैं पढ़ कर जाऊंगा फिर। तो कहते जाओ दो जाके जो होगा देखना। और वो इंटरव्यू देकर आया, तो तभी मुझे लगा नहीं कि होगा नहीं होगा। मैं सर के पास फिर से इंटरव्यू देने के 2 दिन बाद फिर आ गया सिनॉप्सिस लेके, सर ये सिनॉप्सिस है, इंटरव्यू आना है, वाइवा होना है, पीएचडी का फिर नहीं होगा वरना। तो सर ने मुझसे कहा ठीक है आईआईटी दिल्ली अप्लाई कर दो, वहां नहीं हुआ, आईएफटी अप्लाई कर दो। आईएफटी में अप्लाई किया, वहां पर मैंने सर को फोन करके बोला सर हो गया मेरा। तो कह रहे क्यों, मैंने कहा वो पैनल बोल रहा था वी विल सी यू इन कैंपस, उसके 4 दिन बाद रिजल्ट आया, मेरा नाम फिर लिस्ट से गायब। मैंने सर को फिर फोन किया, मैंने सर ये तो फिर इन्होंने नहीं लिया, आप क्या करूं। सर कह रहे कोई बात नहीं आप एफएमएस अप्लाई कर दो। फिर एफएमएस अप्लाई किया, वहां इंटरव्यू देने गया। उनको टॉपिक मेरा जो था वो टॉपिक था रिलेटेड टू पंचकोशा। तो मैंने जब टॉपिक उनको दिया तो वो कहते किसके अंडर पीएचडी करनी है। मैंने कहा करनी तो अजय सर के अंडर है, पर इंटरव्यू यहाँ देना हो। कह रहे तुम्हें पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही करा सकते हो और कोई पीएचडी नहीं करा सकता है। तो फिर मैं लौट कर आया, मैंने कहा सर मना कर दिया, उन्होंने कहा आप ही करा सकते हैं। तो फिर एट द एंड सर के अंडर पीएचडी में हो गया, और आज जहाँ हूँ मतलब टीचिंग में। तो अगर मतलब कहीं पर भी अगर कोई कहता है तो वो मुझसे पहले ही कहेगा अजय सर का स्कॉलर है, तो वो मतलब नाम सर के साथ चलता है, तो मतलब बाय ग्रेस ऑफ सर, और जो भी कहूँ। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू संदीप। आरती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आरती गुप्ता है। मैं श्री अरविंदो कॉलेज इवनिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, और फेब पीएचडी में एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लिया था। और हमने अपने ही डिस्क्रिप्शन से हमने ऐसा सोचा था कि अजय सर हमारे सुपरवाइजर बने और हमें वही मिले। और आज सर का क्योंकि जन्म दिवस है, तो बीइंग अ पोएट, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में पोइट्री लिखती हूँ, तो सर को हम विश करना चाहेंगे। जन्मदिन होता है खास, जन्मदिन होता है खास, स्वयं के होने का एहसास, ज्ञान ध्यान अध्यात्म की राह पर लोगों के जीवन प्रशस्त करते रहें आप। जीवेत शरदः शतम, सुदिनम सुदिनम जन्मदिवन। श्री हरि की कृपा सदैव रहे आपके साथ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे अजय सर को। और क्योंकि हम आर्ट ऑफ लिविंग से भी लास्ट 20 ईयर से जुड़े हुए हैं, तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा सॉन्ग है जो जब भी किसी का जन्म दिवस होता है तो वो गाया जाता है। तो वही मैं सबके साथ में शेयर करना चाहूंगी कि सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। इसमें ना सब लोग बाद में कुहू कुहू भी बोलते, तो आप कह सकते हैं सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, कुहू कुहू तुझे तुम्हें मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। कुहू कुहू सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। तुमको तो है में जाकर मिल जाना, आनंद तुमको तो में जाकर मिल जाना।
तुम हो सुंदर फूल इस संसार के, तुम हो सुंदर फूल इस संसार के। हैप्पी बर्थडे टू अजय सर। और क्योंकि हम यहाँ पर कॉलेज में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, रात को 9:30 बजे घर पहुंचते, इतना समय हम उतना जस्टिफिकेशन अपनी पीएचडी की थीसिस के साथ कर नहीं पाए हैं। पर एज फार एज अवर रेजोल्यूशन एंड लर्निंग इज कंसर्न, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि सर जो है ना, उनके पास अगर हम कुछ डिस्कशन के लिए जाते हैं तो बहुत ही पीसफुल एक स्टेट ऑफ माइंड में सर ला देते हैं, और नॉन जजमेंटल और प्रेयरफुल, फुल ऑफ प्रेयरफुल जो लिसनिंग होती है और डिस्कशन ऐसा होता है। और सर हमेशा इस चीज पर एम्फेसाइज करते हैं कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ थीसिस में होना चाहिए, टेंजिबल कंट्रीब्यूशन इन ट्रू सेंस होना चाहिए। थीसिस तो वैसे भी हो ही जाएगी। तो इसके अलावा जो सर की लर्निंग है, जो मुझे जो स्ट्राइक करती है, वो ये है, पॉजिटिविटी रेप्लिकेट्स फास्टर। तो हमारी जो थीसिस है, दैट शुड बी दैट शुड रिजल्ट इन मेकिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टुवर्ड्स द सोसाइटी फॉर द वेलबींगनेस एंड फॉर द बिलोंगिंगनेस ऑफ द सोसाइटी। तो उसी पर मैं प्रयास करूंगी कि मैं अपना काम करूं। और इसके अलावा जो मेरा रेजोल्यूशन ये है कि जो थीसिस है मेरी, अब वो थोड़ा मैंने, सर ने हमें सेंसिटाइज किया, तो वाकई में प्रॉब्लम की तरफ फोकस ना करके हमें सॉल्यूशन जो हम अपने विद इन आवर मीन्स कर सकते हैं उस पर हमें काम करना चाहिए। तो मैं ये चाहूंगी कि एनहेंसिंग इंक्लूजन, स्पेशली इंक्लूजन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज थ्रू इंट्यूशन एंड सिक्स सेंस डेवलपमेंट, इस पर हम काम करें। और इसके अलावा जो सर का जो पढ़ाने का जो मेथड है वो बहुत बढ़िया ये है कि फ्लिप्ड और स्पॉन्टेनियस क्लासरूम टीचिंग जो होती है ना, तो उससे जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, पॉजिटिव इम्पैक्ट मेकिंग होती है, वो सर की क्लास में होती है। आई अप्रिशिएट फॉर दैट। और इसके अलावा व्हाट मोर, क्योंकि सर का नाम ही अजय है, तो उनके जो स्कॉलर्स हैं, तो उन सब के लिए यही मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि हम अपने जीवन में, अपने जीवन की कठिनाइयों पर जय पाएं। हम अपने लाइफ में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम क्या पॉजिटिव, बीइंग रिसर्च स्कॉलर, हम क्या पॉजिटिव इस सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, और जो नॉन जजमेंटल हो, नॉन पॉलिटिकल हो और पॉजिटिव मोड में हो, जो विद इन अवर मीन्स हो। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होनी चाहिए हमारी थीसिस में। और एक और मैं छोटा सा इंग्लिश में छोटा सा 2 लाइंस का एक मैं बोलना चाहूंगी, कि जैसे इवन हम स्टूडेंट्स के लिए भी हम कह सकते हैं कि उनको क्लास में एट प्रेजेंट विद मेंटल प्रेजेंस के साथ कैसे हो सकते हैं, खास तौर से आजकल के डिजिटल टाइम में, क्योंकि उनके पास सब कुछ मोबाइल पर अवेलेबल है। तो जो हम सर से सीखते हैं ना, बीइंग हैप्पी, क्योंकि सर का पर्सोना एकदम पीसफुल है और स्पिरिचुअल है, वही हमें उनसे लर्निंग एम्बाइब करनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी, टाइम टाइम टू बी हैप्पी, कि व्हेन विल यू बी हैप्पी, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में भी बोलते हैं, व्हेन विल यू बी हैप्पी, कब होंगे आप हैप्पी। तो इस पर एक छोटी सा मैं बोलना चाहूंगी, 2 लाइनें। टाइम टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, एंड प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी and have a little heaven right here, right now on Sir's birthday. Thank you so much again, and with lots of blessing to Ajay sir. Thank you so much. That's it from my end. बहुत बहुत थैंक यू आरती मैम, बहुत सही बोला आपने। एंड इफ आई कुड जस्ट ऐड अ लाइन टू व्हाट संदीप सेड, आई थिंक सारे स्कॉलर्स के लिए इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट इन द यूनिवर्सिटी पीपल नो अस एज सर स्कॉलर। हम लोग अपना इंट्रोडक्शन कहते हैं हम अजय सर के स्कॉलर हैं, और बाद में जो भी होता है वो बाद में आता है। सो Oh, थैंक यू सर फॉर गिविंग अस दिस ऑनर। thank you, ने, Kangan ji. नेहा मैम, नेहा कश्यप मैम। जी हाँ जी कंगन, हाँ जी थैंक यू। मैम, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि हैप्पी बर्थडे टू अ रिमार्केबल टीचर हु लाइट्स अप द वर्ल्ड विद नॉलेज, विजडम एंड काइंडनेस। ये तो सभी बोल रहे हैं मैं कुछ अलग ऐसा बताना चाह रही हूँ अपना एक्सपीरियंस कि वन आई हैव जॉइंट डी स्कूल। तो एक ऐसा होता है ना कि एक छोटे से गांव से निकलकर एक बच्चा आता है तो कितना डरा हुआ होता है। तो सर को देखने के बाद ऐसा लगा कि मतलब एक कि अंधेरे में भी कि एक जो किरण होती है ना, लाइट, वो सर है।
तो सर की जो सबसे पहले मतलब मुझे समझ में आया, सर की जो हंसी थी ना वो ऐसे वाली। तो इट्स वाज लाइक कि भाई ये सर ऐसे हैं कि इनसे कुछ भी बात हम डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे कंगन ने बताया कि हमने घंटों बिताए, तो मैं तो ये बोलूंगी कि आई वॉज देयर फ्रॉम 9 to 5 इन डी स्कूल। कि एक चैप्टर करा उसके बाद सर को दिखाया, फिर एक चैप्टर करा उसके बाद दिखाया। अब मैं टीचर बनी ना, अब मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा मेरे पास इतनी बार आता है तो मेरा लेवल क्या होगा। तो आई रिलेट कि सर ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बोला और हर प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करी। आई वॉज लिटरली क्राइंग व्हेन आई वॉज डूइंग पीएचडी कि सर ये कैसे होगी, क्या होगा, नहीं आ रहा कुछ भी समझ में, मुझे तो लगता है कि हो ही नहीं पाएगी। सर वॉज लाइक हो जाएगी, इट वॉज की हो जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। फिर जैसे तैसे करके मतलब सर ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे अब भी याद है मेरा लास्ट प्रिंटिंग चल रहा था, सर पटेल चेस्ट के बाहर थे कि ठीक है मैं करेक्शन दे रहा हूँ, आप अंदर जाके उसको एडिट करें और फिर उसको निकलवाएं। तो सर वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ पटेल चेस्ट, एक शॉप है वहां पे अरुण थीसिस, उसके बाहर सर खड़े हुए थे, कार के अंदर बैठे हुए थे और सर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और मैं अंदर से वो काम कर रही थी। तो आई वॉज लाइक कि कैसे गोल्ड इंसान के अंडर हमने पीएचडी करी है, देन आई वाज रियलाइज एक्चुअली। और ये पता नहीं हमारी कि हमने कुछ अच्छे कर्म करे हैं कि इतने सारे टीचर्स में हम सर हमें एज ए सुपरवाइजर मिले। तो मैं तो ये कहूंगी कि सर सुपरवाइजर नहीं है मेरे लिए, सर तो अब गॉड को भी रिप्लेस कर चुके हैं। इनफैक्ट सर अब मेरे लिए भगवान है। मतलब जो जो उन्होंने सिखाया वो एक ऐसे ही भगवान ही सिखा सकता है। कोई टीचर तो हम तो फर्स्ट क्लास केजी से नर्सरी से पढ़ रहे हैं, हमें कोई ऐसा टीचर नहीं मिला जो ऐसे शेप अप करे। तो वो भगवान ही हमें ऐसे शेप अप कर रहा है। तो सर का नाम तो मैं अब भगवान से रिप्लेस कर चुकी हूँ। मेरे लिए तो सर भगवान के बराबर ही है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने सर के साथ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ही इज अ फादर फिगर, तो हम सिर्फ अब एकेडमिक से रिलेटेड नहीं है, हम अपने घर की सारी प्रॉब्लम सर से शेयर करते हैं, सर इसे करो, इसे सॉल्व करो, इसे करो। और सर की अगेन वही हंसी, कितनी भी टेंशन हो और सर की एक हंसी मिल जाए, स्माइल ये वाली। तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गई, शायद ये प्रॉब्लम है ही नहीं। तो एक बार जैसे ही हम सर के साथ डिस्कस करते हैं तो वो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम रहती नहीं है, उसका सोल्यूशन मिल ही जाता है ऑन द स्पॉट। और वो या फिर नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में मुझे लगता है कि वो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम रहती नहीं है, वो सॉल्व हो जाती है हमारे लिए। तो थैंक यू सो मच सर। मैं तो ये बोलूंगी कि मेरा जन्म सफल हो गया कि आप मुझे एज ए टीचर मिले, एज ए सुपरवाइजर मिले। थैंक यू सो मच सर। और आप जिए हजारों साल, और हम चाहते हैं कि साल के दिन हो 10-12 लाख। तो हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू नेहा मैम। यस, ये तो हम भी चाहेंगे। कंगन मैम, हाँ जी, हाँ जी, आई बिल्कुल। आई कैन। हाँ हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, प्लीज प्लीज गो अहेड। नमस्ते सर, नमस्ते आप सबको भी नमस्ते। आ, मेरा थोड़ा सा मतलब कि मैं ट्रेन में थी तो मैं ये देख रही थी कि मेरी चार्जिंग भी आज कम होगी, और बट मुझे अपने मतलब 2 लाइनें सर के लिए जरूर कुछ बोलना है, एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर करना है। तो अभी ट्रेन जो है वैसे तो रास्ते में रुक जाती है, बट आज पता नहीं कैसे वो इमीडिएटली रोहतक स्टेशन पे आ गई। और मुझे 7 बजे तक का टाइम है कि मैं घर 7 बजे से पहले पहले मुझे पहुंचना है। तो मैं स्टेशन पे ही थोड़ा सा प्लेस देख के कहाँ पे शांति है तो फटाफट मैं कह रही मेरा नंबर आ जाए पहले। तो आई थिंक कि मैंने 2023 में जो फर्स्ट दयाल सिंह कॉलेज में इंटरव्यू दिया था, तब मैंने इंटरव्यू में ही सर से मिले थे। और उसके बाद मेरा एज अ रिसर्च एसोसिएट का जब मैंने इंटरव्यू दिया तब भी मेरी सर से इंटरेक्शन तो नहीं हुई, बट मैंने इंटरव्यू दिया, सर उस पैनल में थे। तब तक मैं जानती नहीं थी कि मैं जिनके सामने इंटरव्यू दे रही हूँ कि मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुन चुकी हूँ। बेसिकली मेरी सारी स्टडी एमडीयू से है, डिपार्टमेंट से मैंने एमफिल की है। तो वहां पे प्रोफेसर संजीव चाचा जी हैं, उन्होंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है सर के बारे में भी, एंड सर आपके फादर को भी मतलब वो जानते हैं। और मैंने फर्स्ट टाइम 2021 में आपका नेम सुना था। हमारे हेड एंड डीन रह चुके हैं एमटीयू में, प्रोफेसर नरेंद्र कुमार गर्ग सर जी। तो वो बोले कि आपने ड्यू में पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, वहां पर अजय सर हैं बहुत अच्छे, और आप उनके अंडर ही इन फ्यूचर पीएचडी करना। तो मैंने कहा सर मैं ड्यू में किसी को जानती नहीं हूँ, मतलब मैं इंटरव्यू दूंगी और अच्छे से हो जाएगा तो फिर आगे आप ही गाइड करना। बट वो सर रिटायर हो चुके थे
और अभी जब मैंने 2023 में SRCC ज्वाइन किया तब भी सर इंटरव्यू में थे। मतलब मैं अपने लक पे कभी बिलीव नहीं करती, बट मुझे ये लगता है कि जब भी सर मेरे इंटरव्यू में होते हैं तो मेरा काम बनता चला जाता है। और अभी जब PhD के लिए मैंने इंटरव्यू दिया तो मैं 7th रैंक पे थी 2021 में। और मैंने सर से बात की कि सर मेरा PhD में ऐसे ऐसे रह जाता है। सर कहते हैं आप मेहनत करो, मेहनत थोड़ी और करोगे तो और हो जाएगा। सर अभी हेड एंड डीन थे, जब अभी आपकी डीनशिप में ही मेरा PhD में हुआ। उस दिन मैं जब सिनॉप्सिस लेके आई इंटरव्यू के दिन, तो मैं प्रे कर रही कि कुछ ऐसा हो जाए, पैनल कुछ ऐसा हो कि उसमें फाइनेंस का तो है मेरा मेन डोमेन, बट पैनल कुछ ऐसा हो कि जिसमें फाइनेंस का नहीं हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो। और बाय चांस हुआ क्या, मल्टी डिसिप्लिनरी डोमेन मतलब पैनल था, एज वेल एज सर ही मेरे मतलब पैनल में थे। और क्वेश्चंस तो अदर टीचर्स ने पूछे, अदर प्रोफेसर ने पूछे थे, बट होपफुली लकीली वहां पर भी मेरा PhD में एडमिशन हो गया। बट अब समझ नहीं आ रहा था कि PhD करने किसके अंडर में है। तो जो मेरे MDU के जो प्रोफेसर हैं उन्होंने बोला, मैं उनसे डिस्कस करके सब कुछ रिसर्च का थोड़ा बहुत लर्निंग करती हूँ, तो वो बोले कि आप अजय सर को जाके रिक्वेस्ट करो ना कि आपको PhD के लिए ले लें। मैंने कहा सर मुझे कैसे ले सकते हैं, मतलब मैं फाइनेंस डोमेन से हूँ, सर का HR एंड OB है। कहते मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानो, आप जाके बात करो सर से बस। मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर कहते आप 10 टीचर से बात कर लो, जो प्रेफरेंस है देखते हैं और एक पेपर पे काम करके आना। लास्ट आई थिंक 24 फेब थी, मैं 23 तक देखती रही पर मैंने किसी सर से बात नहीं की। मैं वापस 24 को सर के पास चली गई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रेफरेंस है, तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी दिया और मुझे आपके अंडर PhD करनी है, मेरा फाइनेंस डोमेन है और आप जैसा कहोगे मैं कर लूंगी। तो सर बोले अदर 9 प्रोफेसर से बात किया। मैंने कहा सर करनी आपके अंडर है ना, तो मैं अदर से जाके क्या बात करूं, मतलब मैं आप ही मतलब आप ही के अंडर मैंने PhD करनी है। तो जब मुझे मैसेज मिला कि BRS लेटर मिला कि आपके गाइड जो है, एकदम से देख के मैं इतनी खुश होगी मतलब। और मुझे तब मैंने संजीव सर को बताया कि मुझे जो आपने गाइडेंस दी है, मुझे सर ही मिले हैं PhD के गाइड सुपरवाइजर। तो सर बोले कि आपको याद है मैं 2018 में जब बात करता था कि जो प्रोफेसर BP सिंह सर जी हैं और वो बहुत अच्छे हैं और उनका मतलब आगे जो उनका बड़े बेटे हैं वो भी उसी यूनिवर्सिटी में है, DU में है। तो मैंने कहा हाँ जी। कहते वो जो AK सिंह सर के नाम से मैं नाम लेता था और जो BP सिंह सर के नाम से नाम लेता था वो यही है। तो उस दिन तो मतलब लाइक 2018 के मेरे सर के वर्ड्स गए हुए और 2025 जैन 2025 में कैसे मतलब वो सच हो गए, मतलब आई कांट एक्सप्लेन। और अभी लास्ट ईयर मेरा मतलब थोड़ा सा ऐसा था कि थोड़ा शेड्यूल मेरा हेक्टिक सा था, तो मैं बहुत परेशान थी। तो एक दिन मुझे मतलब मेरे सर से इंटरेक्शन हुई तो सर बोले पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए। आई थिंक मीटिंग मिला हाँ सॉरी आए लास्ट हाँ RSC की जी हाँ मीटिंग थी और उसमें क्या कहते हैं कि जस्ट ए मिनट सर, लास्ट RSC की मीटिंग थी तो सर बोले कि ना पॉजिटिविटी की ओर देखना चाहिए हमें। सर ने सजेस्ट किया अप्रिशिएटिव इंक्वायरी वर्ड, और उसी पे सर ने बोला कि आप रिसर्च का ट्राई कर सकते हो और देखो। मतलब कि उसके बाद अब कोई भी सामने से नेगेटिव बोलता है ना, तो मैं उसको ये सोचती हूँ कि वो सोनम को कुछ नहीं कह रहा, अपना काम करो, चलते चलो, पॉजिटिव सोचो। और मतलब मेरा रिजोल्यूशन भी आज का यही है कि कुछ भी नेगेटिव हो रहा है ना तो उसमें पॉजिटिविटी देखनी है। और अपने साथ साथ जैसे मेरा छोटा भाई है वो भी थोड़ा गुस्सा करता है, तो मैंने देखा है कि मैं उसको एक बार जरूर ये कहूंगी कि ना गुस्सा नहीं करते, पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव देखते हैं। मतलब सर आपकी ब्लेसिंग से लाइफ में जो मतलब मेरा पहले ही एम होता था कि मैं मोटिवेट रहूं, पॉजिटिव रहूं, और मेरे आसपास मतलब बहुत ज्यादा टीचर्स का इतना ज्यादा कांटेक्ट है, मतलब स्टूडेंट से फ्रेंड से ज्यादा, और सेम एज इट इज अब आगे भी ऐसे ही हो रहा है। और सर आपकी ब्लेसिंग से हो रहा है। और सर आज सुमन अहलावत ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। एक दिन वो बहुत परेशान थी और सुबह 7 बजे उसका कॉल आया कि वो बहुत परेशान है, SRCC से डिस्प्लेस हो चुकी है
और लाइक वो क्या करे लाइफ में आगे। इवन उसके पास रहने के लिए घर नहीं है, कुछ नहीं, अपने बेबी के साथ उसने कहीं पे रहना है, सरवाइव करना है। तो मैंने उसको कुछ नहीं कहा, मैंने उसको डायरेक्ट कहा, मैंने कहा ऐसे करो, जहां पर भी हो ना, एक बार ना डिपार्टमेंट आ जाना, सर से मिलेंगे, सर से बात करते हैं कि कुछ। सर बोले पॉजिटिव रहना चाहिए, मतलब हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने में जितना टाइम लगाएंगे वो ज्यादा बेटर है, बजाय कि प्रॉब्लम को ही और ज्यादा देख देख कर उसके बारे में थिंक करना, ओवर थिंक करना। तो लाइक अभी आज सर की ब्लेसिंग से वो दयाल सिंह कॉलेज में ही एज ए गेस्ट भी जॉब कर रहे हैं, एज वेल एज वो पीएचडी की थीसिस भी अभी उन्होंने प्री सबमिशन कर दिया है। और उसने ज्वाइन करा था बट उनका हो नहीं पा रहा था, तो मैंने उन्होंने नहीं कहा मुझे कि शेयर कर देना, बट मैं कर रही हूँ सुमन मैम की तरफ से भी, आप एक्सपीरियंस शेयर उनका। वो मतलब कि वो कह रहे हैं कि जब से मैं सर से मिली हूँ ना, वो कह रहे सोनम तू मुझे पहले क्यों नहीं मिली, मैं 3 साल में 4 साल में कभी सर से नहीं मिली डिपार्टमेंट की स्कॉलर होके, और तू अभी अभी आई है, तूने सर से मुझे मिलवा भी दिया। मैंने कहा मैंने नहीं मिलवाया। मतलब ये ना गॉड का होता है कि गॉड कैसे अपनी पावर देता है, किसी को जरिया बना देता है। बस मैं ना एक मीडियम बनी हूँ, बस अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी भी उसका फोन आया मॉर्निंग में कि मतलब वो कितना पॉजिटिव सोचती है और कहती है मैं ना अब नेगेटिव नहीं देखती। और अभी आई थिंक कि वो अपने इन लॉ से भी कांटेक्ट करी है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो, सब कुछ। मीन्स कि उसकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आई है और मेरी लाइफ में भी पॉजिटिविटी आई है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू सोनम बहुत मैम। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत May थैंक यू I? सोनम मैम, आपकी खुशी हम सब फील कर पाते हैं, एंड वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट हैप्पीनेस, एंड थैंक्स टू सर। आई वुड रिक्वेस्ट द नेक्स्ट स्पीकर टू प्लीज Uh, अनम्यूट योरसेल्फ। can I? हाँ Can I जी, share? प्लीज, एब्सोल्युटली Okay. मैम। Okay. Thank you. So first of all, a very happy birthday to you. And मैं ये कहना चाहती थी, आई हैव नॉट बीन अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ योर्स, तो बट स्टिल मैं कहूंगी आपका बिहेवियर, अगर मैं खुद मान रही हूँ इफ आई हैव नॉट बीन अ गुड स्टूडेंट, बट गुड स्टूडेंट्स और मेरे तरफ आपका कभी नेचर डिफरेंट नहीं रहा। सो आई गेस जो आप बात करते हो, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको पॉजिटिव साइड्स देखनी चाहिए और आपको मोटिवेट करना चाहिए। सो आई वुड से कि आप खुद ही उस चीज को रिफ्लेक्ट भी कर रहे हो। और एक कहते हैं ना, जैसे हाँ सुपरवाइजर्स या कोई कोई भी से नेगेटिवली मोटिवेट करता है, तो क्या होता है नॉर्मली उसमें कि आपको एक डर होता है सुपरवाइजर से कि अरे अगर हमने काम नहीं किया तो सर डांटे ना, मैम डांटे ना। बट आपके साथ एक वो पॉजिटिव मोटिवेशन है जो लिंक्ड है। हमें खुद से, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मुझे ये रहता है राम्या कुछ तो काम करना है सर को, मतलब अदरवाइज आई वुड फील एम्बेरेस्ड अगर मैं इतने पॉजिटिव पर्सन के सामने भी मैं अगर कुछ ना कर सकूं। वो पॉजिटिविटी जो आपसे मिली है, उसके अलावा भी, और जो जैसे सब बता रहे कि सर बस एक बार ही हंस देते हैं और उसके बाद बोलते हैं, तो वही मतलब मैं अगर सर को ये भी कहती हूँ ना, सर मैं काम नहीं कर पाई या मैं टाइम नहीं दे पाई, तो तब भी सर का यही आता है, सर एक बारी हंस के दिखाते हैं थोड़ा सा और ठीक है, मतलब सर फिर भी उसको एक पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन की तरफ ही हमेशा लेके गए हैं। तो एक कभी ना मुझे वो डर फील नहीं हुआ कि अरे मैंने कुछ काम नहीं करा तो मैं कैसे जाऊं। हमेशा एक ना वो शाइनेस होती थी कि अरे इतना भी, मतलब आई कैन नॉट डू एनी वर्क विद सच पॉजिटिव सुपरवाइजर, आई वुड से। सो एक ये चीज थी पॉजिटिविटी जो आप बात कर रहे हैं। एंड मैं ये कहूंगी, मैं जितना भी सर से इंटरेक्शन रहा या मीटिंग्स जितनी भी अटेंड करी, मैं जितनी बार गई हूँ ना, देयर हैज बीन अ लर्निंग। और अगर मैं आज के इस एक्सपीरियंस शेयरिंग की भी बात करूं, अब भी एक और लर्निंग है कि पॉजिटिविटी, जैसे सबने इतनी पॉजिटिविटी सर से सीखी, आई वुड ऑल्सो अप्रोच हिम फॉर कि बिकॉज आई ऑल्सो हैव दैट नेगेटिविटी इन माई लाइफ, या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो हाउ टू डील विद इट, हाउ टू ब्रिंग पॉजिटिविटी। और जो मतलब विद अ स्टूडेंट लाइक मी, तब भी वो इतना काम कंपोज नेचर जो सर का है, और जिस मतलब पीस, आई वुड से, मतलब कुछ वर्ड्स नहीं होते, जैसे होता है ना बिल्कुल शांति के साथ और बिल्कुल कंपोज होके कैसे आप किसी से बात करते हो, तो वो मैं सर से सीखना चाहती हूँ। वो भी प्लस वही, मतलब वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ। तो आज भी इस एक्सपीरियंस शेयरिंग में भी एक एक्सपीरियंस नया मिला है कि हाउ टू इंड्यूस पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, या कैसे नेगेटिव्स को दूर कर सकते हो, मोटिवेशंस क्या क्या है। सो थैंक यू सो मच सर।
एंड ऑब्वियसली आई ट्राई टू, आई एम ट्राइंग एक्चुअली. आपने भी शायद थोड़ा चेंज देखा होगा मुझ में, आई होप, कि विद द time or whatever work I'm or whatever effort I'm putting in, and I'll continuously improve myself. And I want कि वो एक दिन आए जिस दिन आपको, हाँ, I am proud with Ramya as well, proud of Ramya as well. So waiting for that day कि मैं उतना improve कर जाऊँ कि आप मेरे लिए भी you can say these words for me as well. So thank you so much, sir. I'm sure, Ramya ma'am, ये दिन जल्दी ही आएगा. And I know I'm taking away time from everybody's space, but I will add one more thing. I think सर इकलौते ऐसे सुपरवाइजर हैं जिनके सुपरविजन के दौरान his scholars have conceived, given birth to their babies, and sir is equal participant in nurturing that baby. I mean, this is exceptional, unheard of. बिकॉज मैंने जितनी कहानियां सुनी है, सुपरवाइजर्स लेने से पहले आपसे ये खरा लेते हैं दैट यू आर नॉट गोइंग टू प्लान योर फैमिली ड्यूरिंग दिस पीरियड. सो अगेन सर, बहुत बहुत थैंक्स आपको. एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस, प्लीज Yeah, अनम्यूट Kangan, योरसेल्फ. can I speak? Absolutely, ma'am. Yes, please go ahead. Thank you. Happy birthday, sir. Very, very happy birthday to you. I have known sir since 2005, so it's been almost 21 years. It was Masters of Commerce, and I still remember the first day I met him in the corridor of Department of Commerce. He was wearing a green suit, and I was just discussing something with him, and obviously the one thing, positivity, that he has is something all of us know, and he has filled our life with so much positivity. मतलब it's obviously we are still learning. हम वहां तक तो पहुंच नहीं पाएंगे जहां सर पहुंच चुके हैं जब हम सर को देखते हैं. In during our post graduation, in our Masters of Commerce classes, obviously he has a unique way of teaching, and I think I emulate him when I teach in my classes. Every class that I take, जब मैं वहाँ खड़ी होती हूँ रूम में, जब मैं वो एक्टिविटीज कराती हूँ, तो मुझे पता है कि उसमें सर का कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है. और जब मेरे बच्चे अप्रिशिएट करते हैं मुझे, तो मुझे नहीं, सर को अप्रिशिएट कर रहे हैं. एंड नॉट ओनली दिस, जैसे कि आई थिंक संदीप ने बोला, वो तालियां बजाने वाला कल्चर, तो दैट वाज देयर इन आवर क्लासेस आल्सो. एंड ही वुड ऑलवेज से, कोई भी कुछ बोलता था, आंसर देता था, प्रेजेंटेशन देता था, तो हिज डायलॉग वुड बी, लेट्स एक्नॉलेज, एंड देन एवरीबडी विल स्टार्ट क्लैपिंग. So we, the Masters of Commerce 2005 batch students, made a WhatsApp group, and it still exists. हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन का जो बैच है उसका नाम है लेट्स एक्नॉलेज, और उसमें सारे हम एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं. और डेफिनेटली अभी इनफैक्ट अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे कुछ बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे थे, तो किसी ने प्रेजेंटेशन दी, और बच्चे, एक आध ने ताली बजाई, काफियों ने बजाई नहीं. एंड आई रिमेम्बर, तब मुझे फिर से सर की याद आई, और मैंने एकदम बोला, हाँ भाई, तालियां बजाने में कौन सी शर्म है, बजा रहे हो तो खुली बजाओ, अच्छे से बजाओ. सो देन दे लाफ्ड एंड दे वर वेरी हैप्पी. नॉट ओनली दिस, सर को मैं जानती हूँ. सर के, जैसे तुमने बोला, सर के सामने ही मेरी शादी हुई समवेयर अराउंड 2012. And I remember he came to my marriage, and he was supposed to go for another marriage, and the groom had not come, and I was supposed to get my PhD 6 monthly report signed. एंड सर से मैंने वहां पे वेन्यू पे साइन कराई थी पीएचडी रिपोर्ट अपनी, याद है मुझे वो. एंड देन ही वेंट फॉर दिस अदर मैरिज दैट ही वाज सपोज्ड. I gave birth in front of him, as in my son, who is 11 years of age now. He's born in the same month, that is 11th March. He's born on 11th March. He has the same initial, sir, and हम बहुत मजाक करते हैं. वो भी कहता है मैं AK Singh हूँ. He's rather called Singh. So the initials are same. He has his blessings, I'm very sure. And in my life, obviously, I have also had a lot of harsh, like what do you call, personal problems and all some years back. And sir was constant. I would often ask him whether I should do this and that, and I would say I would do this, and he would say no, 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 hold on, don't do this. And today I want to thank you, sir, on record, that whatever you said, it's all vanished now. Everything is perfect. And जैसे कि किसी ने बोला था, कर्मा है, ये हमारा कर्मा ही है कि सर हमारी लाइफ में आए हैं. हमारा कुछ बहुत ही अच्छा कर्म है कि हम सर को जानते हैं, और सर ने हमें शेप किया है हर चीज में. मैंने सर के साथ हर कैपेसिटी में काम किया है. एज अ स्टूडेंट काम किया है, एज एन एम्प्लॉय काम किया है, एज अ जूनियर कॉलीग काम किया है, एज अ PhD स्कॉलर काम किया है. तो मैंने हर कैपेसिटी में काम किया, लेकिन
कोई डिफरेंस नहीं है सर के एटीट्यूड में। आप किसी भी कैपेसिटी में काम करो, सर विल ऑलवेज ट्रीट यू एज एन इक्वल। माय हस्बैंड ऑफन सेज तुम्हारा फॉलो अप बड़ा तगड़ा है, कोई चीज हो कोई भी बात हो तो आई कीप ऑन फॉलोइंग अप एंड ऑल। सो आई एम लाइक कि ये मेरा फॉलो अप नहीं है, ये सर से मैंने सीखा ये है कि कैसे पीछे पड़ जाओ अपना काम कराने के लिए। एंड दैट फॉलो अप डेफिनेटली इज वन ऑफ द स्किल्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम सर। पॉजिटिविटी यस, कर्म करते चलो बस। और जो भी है, क्योंकि ये हम जानते हैं कि हमारा कर्म है, हमें मिलना ही है, सुख मिलना है, दुख मिलना है, जो हमारा कर्म होगा उसके हिसाब से मिलना है। वी जस्ट हैव टू एंजॉय आवर लाइफ एंड वी आर ब्लेस्ड सर दैट वी नो यू। I also remember, I think, when initially we were in his classes, sometime he told us that he was having this seventh cycle of his life sometime back. And in fact, now is the time when I messaged him sometime back and told him that, sir, I think I am in my seventh cycle now. So, I mean, how amazing it is. It's been like 21 years of knowing you as a guide, philosopher, friend, father, and Neha ne jaise bola, God. Definitely, sir. We just admire you. We love you. We need your blessings each and every day. Please keep on blessing us. You've played a tremendous role in shaping us as teachers. Definitely, yeah, I would like to point this out that हम सब सोचते हैं हमारी लाइफ में बहुत problems हैं. And I don't know, many of you would know that when sir was supposed to be the head of the department and he was not made the head of the department, we were all very broken. I'm sure जब हम broken थे तो sir की क्या feeling थी मुझे मैं तो express भी नहीं कर सकती. And when he came back, suddenly, I mean, do you all see that when he came back, it was just then when the interview process started. It never happened before that because it was supposed to be done under him. The whole NEP thing, the syllabus and everything, how he included every teacher of every college to be a part of syllabus designing, which often college teachers crib that हमें part नहीं करते, department अपने आप करता है and all that. That's what he did. The transformation that he does in each of our lives, not only our lives, the whole university. So how amazing it was that he came, and for all those 3 years as head of the department, he was the one who made so many under whose leadership the interviews happened. And so I think it says a lot, sir. I mean, आपका क्या role है, भगवान ने आपके लिए क्या role रखा हुआ है. We feel really blessed that we are your students, or I would say we are your daughters. I would like to take that liberty. We are the daughters that you have. We just love you, sir. Happy birthday. Big happy birthday to you, sir. Thank you so much. Thank you, Arpita ma'am. I am sure the sentiment resonates amongst all of us here today. So, the next speaker, I would request I everyone. the Yes. next speaker. हाँ जी, प्रिया जी, please. ओके, तो हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू सर। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि मैं आपके मतलब आपको नहीं पता, जब हम एमफिल में थे, जब आप हमारी क्लासेस लेते थे, तो आपको नहीं पता उस टाइम पे मैं कितनी ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में थी। फिजिकली मेंटली बहुत ज्यादा हमारी फैमिली इश्यूज भी चल रहे थे और हेल्थ से भी मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। तो उस टाइम पे सर क्लासेस में बोलते थे, पॉजिटिविटी के बारे में बताते थे, योगा के बारे में बताते थे मोस्ट इम्पोर्टेंटली। तो तभी वो टाइम था जब मैंने योगा स्टार्ट किया था। और पॉजिटिविटी जो सभी बात कर रहे हैं पॉजिटिविटी की, तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज से इम्प्रेस हूँ सर से कि पॉजिटिव वाइब बहुत आती है सर से। मतलब जब भी मिलने जाते हैं, बात करते हैं, और जो हमारी मीटिंग्स होती हैं उसमें भी। और इनिशियली क्या हुआ था एमफिल में, सर क्लासेस के दौरान ही, ऐसा नहीं था कि पूरे टाइम ही लेक्चर देते थे, सर जरूर से जरूर चीजें सिखाते थे, वैल्यू एजुकेशन जरूर देते थे हमें कि पॉजिटिव रहो। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती। आप जितना सोचोगे कि वो बड़ी है, वो उतनी ही बड़ी बनती जाएगी। तो वहीं से फिर धीरे धीरे मैंने योगा स्टार्ट करी। और सर को भी नहीं पता, मेरे को उस टाइम पे सर से बहुत डर लगता था। सर से बात करने में भी डर लगता था कि मैं कैसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर करूं। लेकिन सर जैसे जैसे वैल्यू एजुकेशन देते थे, तो धीरे 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 वो मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल हेल्थ मेरी अच्छी होती गई। तो उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ सर के लिए, सर से बहुत 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 थैंक यू सर उस टाइम के लिए।
और फिर अब जब एमफिल पीएचडी में एडमिशन हुआ उस टाइम पे भी मैंने सोचा हुआ था कि मेरे को सर के अंडर में ही करनी है। तो एडमिशन के बाद मैं प्रदीप सर के पास गई। मैंने सर से पूछा क्योंकि मुझे सर से बात करने में पर्सनली बहुत डर लगता था। मैं सोचती थी पता नहीं सर अब क्या बोलेंगे, मुझे भी पता नहीं। तो सर से, प्रदीप सर से मैंने बोला कि सर प्लीज मैं क्या करूं, मेरे को अजय सर के अंडर में ही पीएचडी अपनी करनी है। तो सर ने मुझे समझाया कि तुम बिल्कुल भी मत डरो, एकदम कामली सर से बात करो, सर कुछ नहीं कहेंगे। और मैं गई, सर से बात करी और सर का पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स था कि ये काम करो, हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क से हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। तो वही है, फिर तभी से मैंने काम करना स्टार्ट किया। और जब मेटर्निटी लीव के बाद मैंने मीटिंग्स ज्वाइन करी, तभी भी डेली डेली मतलब कुछ ना कुछ, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ पॉजिटिव वाइब आती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर से। तो मैंने सर से पॉजिटिव वाइब सीखी, पॉजिटिविटी सीखी, कामनेस सीखा। और मैं वो पर्सन हूँ जो ना, मैं बहुत ज्यादा पेशेंस लेस हूँ, मतलब मुझे ना सब्र नहीं रहता और मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हूँ हर चीज पे। तो वही चीज है कि मैंने सर से सीखा कि कितना पॉजिटिव रहना है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। सिचुएशन बड़ी नहीं होती इंसान से, जितना ज्यादा पॉजिटिव रहोगे उतनी ज्यादा नेगेटिविटी धीरे 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 अपने आप खत्म हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इसीलिए थैंक यू सो मच सर, और आई एम वेरी लकी कि आप मेरे मेंटोर हो। वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत थैंक यू प्रिया जी। If we have other speakers, you may please unmute yourself. Gauri ma'am, Shiv. Yes, हाँ जी, hello ma'am. We were thank waiting you. for you. Yes, yes. थैंक यू। फर्स्ट, सबने सब बोल दिया, मुझे लग रहा है कि मेरी ही कहानी चल रही है। मेरा ही कुछ पार्ट है जो मुझे कहना है, सबने कह दिया है, पर फिर भी मैं अपने दिल से अपनी आवाज में कहना चाहती हूँ सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी विशेस, फॉर एवरी ब्लेसिंग्स। और जैसे कि मैम सोनम मैम ने बताया था कि वो एमडी से हैं, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से सिर्फ अपना ग्रेजुएशन किया था। मुझे नहीं पता था नॉर्थ में क्या चल रहा है, मेरा तो जेडीएम कॉलेज था। पापा ने कहा घर के पास रहो, हमारे पास रहोगे पता नहीं क्या चल रहा है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर दोबारा से एंट्री करूंगी। मैंने बीएड किया आईपी यूनिवर्सिटी से। तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब ये लगा कि जैसे अभी मैम ने बोला, अर्पिता मैम ने, कि इट्स कर्मा, कि आप कुछ तो करके आए हो कि जो इतनी अच्छी लाइफ मिली है, इतने अच्छे गुरु मिले हैं जो भगवान भी हैं, मेंटर भी हैं, सुपरवाइजर भी हैं हमारे, और मतलब सब तरीके से हमारी हेल्प कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगी जब से मैं सर से मिली हूँ मैं ग्रो ही कर रही हूँ, मेंटली भी, सोशली भी, प्रोफेशनली भी। सब कुछ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से मतलब अब एक बार मैंने, सर ने कहा था कि 2016 में कि आप आर्ट ऑफ लिविंग जानते हो। मैंने उसी दिन से सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि आर्ट ऑफ लिविंग मेरे आसपास कहाँ से। तो 2016 से मैंने ज्वाइन किया था। देन फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे सुनती गई गुरुजी को, उनका ज्वाइन किया, उनके काफी चीजें सुनी। तो जो जैसे जैसे सर कहते गए मैं वैसे ही, मतलब सर बोलते हैं कि आप ना अपने आप को जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी भी कहते हैं सरेंडर तो करना ही पड़ेगा, या तो एक तरफ हो लो या सबकी तरफ हो लो। तो वही उसी दिन से सीख लिया कि गुरुजी ने कहा कि अगर आप मेरा हाथ नहीं पकड़ो, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है। गुरुजी के वर्ड से तो बिल्कुल सेम लगता है कि अजय सर ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा तो हाथ छोड़ सकता है, उसे लगता है कि नहीं नहीं कोई अच्छी चीज होगी, मुझे वहां जाना है, पापा ने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया है, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। पर अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है, अब आंख बंद करके सर को बताइए थे कि सर ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही जरूर, इसमें कुछ बात जरूर होगी। तो ये सोचना हमने शुरू कर दिया है, जो जो सर कहते हैं हम करते जाते हैं और बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। Thank you, sir. And I would like to express my heartfelt gratitude and wish you a very, very happy birthday, sir. Thank you so much, sir. From my whole family, सबको पता है, सब आपको जानते हैं। और बहुत कम टीचर्स होते हैं ऐसे कि बच्चों के पेरेंट्स उनको जानते हैं कि अच्छा आपके टीचर ये हैं। तो सर थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थिंग्स।
Thank you, ma'am. If I'm not mistaken, Kaju happened during your PhD. Yes. So yes, ma'am also conceived and gave birth to a beautiful kid in Sir's reign. Yes. So बहुत बहुत सुंदर ma'am. ब्लेसिंग्स है ये भी, देखो कैसे हो गया, बेबी भी हो गया, नाउ ही इज 5 years old. बताओ, very nice, very nice. सब कुछ. जी, if Yes, anybody else wants yes. to share, Kangan, I ma'am, will share. Himansh also happened between your PhD. Yes, Oh, very yes. nice, very nice. Please go ahead. Yes. सर विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे. और आज ये एक स्पेशल डे है, मतलब लाइक लास्ट फ्यू डे से आई वाज वेटिंग कि सर का स्पेशल डे है और हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी सर से फाइंड आउट करना है कि हम सर से मिल सकें. और सर ने प्लेटफॉर्म भी हमें प्रोवाइड कर दिया है जहाँ पे हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. और सर मैं पर्सनली सारे स्कॉलर्स के साथ शेयर करूंगी. मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ सर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो एक मैजिक के फॉर्म में वर्क करती हैं. और समटाइम्स इट इज लाइक हिडन पावर, हमें ये भी नहीं पता कि ये कहाँ से हो रहा है. बट अब वो सोर्स मैंने मान लिया है, वो सर की ही ब्लेसिंग्स हैं जो वर्क कर रही हैं. और लाइक ऐसा मतलब समटाइम्स ऐसा होता है कि सिचुएशन है और ये मिरेकल हुआ तो कैसे हुआ. मतलब जैसे मनी जी का भी मैंने यूट्यूब एक्सपीरियंस सुना था. इट इज लाइक मिरेकल्स की मिरेकल्स कैसे हो रहे हैं और ये ब्लेसिंग्स हैं जो इतनी इफेक्टिवली वर्क करती हैं. और इस मैं एक सर की एग्जाम एक शेयर भी करूंगी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. ये 2013 की बात है और उस टाइम पे मैं एज एन एडहॉक भगत सिंह कॉलेज में वर्क कर रही थी. सो ऑलरेडी 2.5 year का टेन्योर था, मैं वहाँ वर्क कर चुकी थी. और ये हम सारे जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम है कि अगर आप लास्ट वर्किंग डे तक कॉलेज में वर्क करते हो और ओपनिंग डे पे ज्वाइन करते हो, ओनली देन हमें समर सैलरी मिलती है. अदरवाइज अगर हम डिस्प्लेस हो गए और ओपनिंग डे पे हमें समर ज्वाइनिंग नहीं मिली, सो वी विल लूज आवर समर सैलरी. तो मेरे साथ भगत सिंह कॉलेज में ऐसे था कि मैंने बड़ी ऑनेस्टली बड़ी फेयरली वर्क किया था. बट सिंस कॉलेज इज नोन फॉर सम टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो मुझे भी थोड़ा सा सफर करना पड़ा कि 22 जुलाई 2013 उन वहाँ पे इंटरव्यूज हुए थे. एक दिन पहले सेकेंड डे जब रिजल्ट आया, आई गॉट टू नो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और वो डे मेरा बर्थडे भी होता है. तो आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड, टोटली शैटर्ड. मतलब जिस कॉलेज में मैं सोच रही थी आई वॉन्ट टू बी अ परमानेंट टीचर, उस कॉलेज से डिस्प्लेस हो चुकी थी. सो आई डिडंट न्यू कि क्या होगा, क्योंकि अब मैंने किसी कॉलेज में इंटरव्यूज भी नहीं दिए थे और ऑलरेडी एडमिशन्स में सब काम में डेडिकेटेड वे में वर्क किया कि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पे बड़ी अच्छी प्रेफर्ड कैंडिडेट हूँ, मेरे को कौन हटाएगा. तो बट बिल आई वॉज डिस्प्लेस. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई हैड नो होप कि अब मुझे कहीं मिल सकता है, क्योंकि कहीं मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए, सब इंटरव्यूज हो चुके हैं. मैं एडहॉक की बात कर रही हूँ. सो और मेरी एंगेजमेंट हो रखी थी. तो लाइक ये होता है कि आप जॉब लूज कर रहे हो और आपकी समर सैलरी भी एक इट्स अ गुड अमाउंट जो आप यूज कर सकते हो अपनी मैरिज के टाइम पे, तो शायद वो भी नहीं मिलेगी. तो इवनिंग में मैंने सेम डे सर को कॉल किया, शेयर्ड एक्सपीरियंस की ऐसा ऐसा हुआ है. तो सर से भी जस्ट यही एक्सपेक्ट किया कि सर कहीं इंटरव्यूज होंगे तो आप ध्यान रखना. एंड सर ने अपनी ब्लेसिंग्स दी और कॉल मैंने रख दी. थोड़ा सा बेटर फील हुआ. देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यहाँ पे मैं ऐड करूंगी, अमित सर ने भी उस मोमेंट पे जब मैं डिस्प्लेस हुई थी मुझे कॉल किया और सर ने यही कहा कि श्वेता अभी जहाँ इंटरव्यूज हैं आप जाके देखो, और अगर कहीं पे भी हैं आप जाओ इंटरव्यू देने जाओ. तो मुझे पता चला कि एक डीसीएसी कॉलेज में इंटरव्यू था और मैत्री कॉलेज में एडहॉक का इंटरव्यू होना था. तो नेक्स्ट डे मैं मैत्री कॉलेज के एडहॉक इंटरव्यू में देने गई हुई थी. बट वहाँ पे किसी को नहीं जानती थी और सर की ब्लेसिंग्स होंगी. बट मैंने सर से नहीं कहा था कि मैं मैत्री कॉलेज में उस टाइम पे इंटरव्यू में जा रही हूँ. और एडहॉक डिपार्टमेंट के ही टीचर्स इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, तो सीनियर टीचर्स जो वहाँ की थी, दे आर ऑल्सो लाइक
आई हैव लॉस्ट ऑल द होप कि अब तो कुछ नहीं होना। मैंने उनको अपनी स्टोरी शेयर की कि ऐसी पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें थी, तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं, बट डोंट बिलीव कि वी विल कीप यू। लास्ट वर्ड उनके ये थे, और मैंने भी कहा कि ठीक है मैम, आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन, आप जो भी डिसीजन लोगे। और बट पता नहीं क्या था, इंटरव्यूज वहाँ के ओवर हो गए। शाम को वहाँ पे जो टीचर इंचार्ज थे, उनका कॉल आया कि आप हमारे यहाँ एडहॉक ज्वाइन करेंगे। मैंने कहा यस डेफिनेटली। मतलब अब मुझे नहीं पता ये मिरेकल कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, बट यस दिस इज मिरेकल दैट हैज हैपन इन माय लाइफ। और आज मैं, मतलब वो सर की ब्लेसिंग्स हैं जो मेरे साथ वर्क कर रही हैं। इस कॉलेज में मैं परमानेंट हो गई हूँ। और पीएचडी भी जब हमें करनी थी तो मैं 2-3 बार डिपार्टमेंट में अप्लाई मैंने किया था, बट उस टाइम पे जैसे सर ने कभी सर दुबई में सर का ज्वाइनिंग था, या सर डिपार्टमेंट में सर के पास स्कॉलर्स इतने थे दैट सीट्स वर नॉट अवेलेबल। तो पीएचडी में जब सिलेक्शन हुआ तो भी सर के साथ अपॉर्चुनिटी मिली कंटिन्यू करने की, पीएचडी करने की। तो सर के साथ एसोसिएट होने के बाद लाइफ पूरी चेंज है, पूरी सेटल्ड है। सर की ब्लेसिंग्स इतनी इफेक्टिव वे में वर्क करती हैं, ये मेरे लिए तो मिरेकल है। किसी भी चीज में कभी भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, मैं सिर्फ सर की ब्लेसिंग्स याद करती हूँ। और कभी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन भी होती है तब भी लगता है कि सर कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, हमें भी वैसे हैंडल करना चाहिए। अर्पिता जी ने जैसे शेयर किया कि हम सब ने सर का वो एक्सपीरियंस, वो जर्नी देखी थी जहाँ पे हम वेट कर रहे थे अब सर की हेडशिप आएगी। अब सर की हेडशिप, हिमांश ने भी कुछ कहना लगता है, सर की हेडशिप का हम सारे वेट कर रहे थे। और इट वाज डिस्टर्बिंग टाइम की, मतलब हम लोग भी सोचते थे, हम सारे डिसअपॉइंट होते थे कि सर का टेन्योर कब आएगा। बट यस, हर चीज का एक अपना समय होता है। आई थिंक वो भी समय आया, और सर ने इतनी पेशेंटली उस डिफिकल्ट टाइम को हैंडल किया। तो हमें भी, हमारे लिए भी वो लर्निंग है कि हमारे पास भी लाइफ में कोई डिफिकल्टी आए तो हमें उसे पेशेंटली और ग्रेसफुली उस चीज को हैंडल करना है, रादर देन कि हम बहुत ज्यादा अपना सबके सामने अपनी डिसअपॉइंटमेंट शो करें। तो मेरा डिफिकल्ट टाइम था, बट ये सर की ब्लेसिंग थी, मुझे बैतरी में एज एन एडहॉक मिला। उसके बाद मेरी समर सैलरी भी बच गई। एक दिन का वो गैप था, मुझे ओपनिंग डे पे ही ज्वाइनिंग थी और मेरी समर सैलरी भी सेव हो गई। तो और सो यही मेरा एक्सपीरियंस है। सर आपकी ब्लेसिंग्स एक मिरेकल की तरह है, इसलिए मैं हमेशा जब भी हिमांश का बर्थडे होता है, कोई स्पेशल लाइफ का डिसीजन होता है, मैं हमेशा आपकी ब्लेसिंग सीख करती हूँ। और आप इसी तरह हम सबको ब्लेसिंग्स देते रहिए। और ये छोटा शैतान भी साथ में बैठा हुआ है। Hello, sir. Happy birthday, sir. Hello. Thank you very much. Sir, Himansh might have disturbed you during that. Thank you everyone. Thank you. PhD period जब भी श्वेता की Saturday morning meetings होती थी 8 o'clock, Himansh was a part of the meeting. I was handling Himansh most of the time and Shweta was attending the PhD meeting. So अभी हिमांश ने भी ब्लेसिंग्स लेनी है सर, और हिमांश ने थोड़ा सा जितना याद है इन्हें हनुमान चालीसा सुनानी है आपको। हिमांश चलो जल्दी फास्ट। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुट सुधारे, भरनहु रघुबल विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिले सुमिरो पवन कुमार, भले लग विद्या देख मोहि हरहु कुलेश विकास। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचर वरन मिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र हो ध्वजा विराजे, काने मूंछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रकाश महाजुग मंडल। विद्यावार हरि गुट चातुर, राम काज तुबिते को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि
लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहाय रामचंद्र के कासा। थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर, वेरी वेरी नाइस हिमांश। बहुत थैंक यू बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया मैच, हैप्पी बहुत बर्थडे बढ़िया। सर वंस थैंक यू, अगेन। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, Thank you, sir. Shweta ma'am. Thank you, sir. Thank you, Himansh. Satyendra sir, very sorry to keep you waiting. I could see your hand was raised. सबसे पहले हमारे आदरणीय बड़े भाई जैसे प्लस डिवाइन ग्रुप के प्रेसिडेंट प्लस दिल्ली यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ प्रोफेसर अजय कुमार सर को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर हमेशा उनको ऐसे ही प्रसन्न, स्वस्थ, आनंदित रखें और दूसरों को ऐसे ही अपनी जो है डिवाइन ब्लेसिंग शेयर करते रहें। मैं बेसिकली 2010 में सर से मुझे मिलने का मौका मिला और चूंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से था और सर से जुड़ा, सर के संस्थान से जुड़ा, बहुत सारे अनुभव हैं। अगर मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे इतने सारे लोगों का जो है विचार रखना होगा तो समय का होगा, ध्यान रखता हूँ मैं। इतनी सारी सर के साथ में अनुभव है जिसको अगर मैं शेयर करूँ तो एक अच्छी खासी किताब बन जाएंगी एक्चुअली। और हर समय जब भी मुझे मौका मिला सर से मिलने का और सर को जब भी टाइम मिला तो हमें यही लगा कि इससे अच्छा आनंदित पल कहीं नहीं है एक्चुअली। और मैं किसी काम को बड़ा सीरियसली लेता हूँ और इसको लेकर के मैं बड़ा सीरियस हो जाता था कि इसको कैसे किया जाए। और मुझे खुशी इस बात की है कि सर ने मुझे गाइड किया कि आप आर्ट ऑफ लिविंग क्यों नहीं ज्वाइन करते हो। एक्चुअली मैं आर्ट ऑफ लिविंग ज्वाइन किया क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता था, मॉर्निंग वॉक भी करता था, तो उन्होंने बोला इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, उसको भी आप करिए। और मैं उसको करने लगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फिर सर से जब भी मुलाकात होती थी तो हम रिसर्च के बारे में भी सर से चर्चा करते थे और सर वही से बड़ा यूजुअली बड़ा सिंपल तरीके से इतना अच्छा से हमें गाइड करते थे कि बड़ा अच्छा लगता था। अभी भी आज के दिन भी जब कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां जबकि हम काफी तनाव ग्रसित हो जाते हैं तो उस केस में भी सर हमें यही कहते हैं कि नहीं हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और अच्छा से हो जाएगा एक्चुअली। तो ये सारी चीजों को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ईश्वर सर को ऐसे ही डिवाइन पावर से जो है मजबूत बनाए रखें ताकि हम लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलते रहे। और कई ऐसी घटनाएं हैं। एक घटना ऐसा मैं बता रहा हूँ कि मेरा बेटा का एग्जामिनेशन था एनडीए का यहाँ पे दिल्ली में, और उसका जो है हॉल टिकट वो छोड़ दिया था, नहीं लिया था। मेरे को फोन किया कि पापा मेरा हॉल टिकट कहीं रह गया। मैं बोला सब रह गया तो ठीक है। फिर मैं सर को फोन किया, इट वाज अर्ली मॉर्निंग आई थिंक अराउंड 8:30 एंड सो। तो मैंने सर को बोला कि सर ऐसे ऐसे हो गया है और उसका एग्जाम है और वो भूल गया है, तो क्या कुछ कर सकते हैं क्या? बोले अच्छा उसका कहाँ पे है? एंड ही हिमसेल्फ टुक आउट दैट एडमिट कार्ड एंड वेंट एट एग्जामिनेशन सेंटर एंड हैंडेड ओवर दिस एडमिट कार्ड टू दैट बॉय। आप सोच लीजिए, इसे 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 ग्रेट थिंग, आप सोच भी नहीं सकते इसके बारे में। एक टेस्टिमोनियल में और आपको शेयर करूंगा। मेरी बेटी जो है उसको हायर एजुकेशन करना था, पीजी करना था, एंड शी वाज बेसिकली इंसिस्टिंग अपॉन कि शी शुड गो फॉर साइकोलॉजी। एंड चूंकि हम सर के फादर चेयरमैन सर से भी बहुत क्लोज हैं, मुझे ये आशीर्वाद उनसे भी मिलते रहता है और मैं सौभाग्यशाली हूँ। तो सर ने मुझे सजेस्ट किया कि आई थिंक इकोनॉमिक्स इज द विल बी द राइट सब्जेक्ट फॉर हर। मैं सर से पूछा फिर अजय सर से कि व्हाट शी शैल बेसिकली चूज। तो उन्होंने मुझे कहा कि आई थिंक उसका जो है ना साइकोलॉजी में अच्छा है, ठीक है। बट मुझे लगा कि साइकोलॉजी क्या करना, फिर मैंने उनको इंसिस्ट करके इकोनॉमिक्स में ही एडमिशन करवाया। इकोनॉमिक्स उसने फर्स्ट क्लास किया, सब कुछ अच्छा था, बट आफ्टर डूइंग इकोनॉमिक्स, कंप्लीटिंग हर इकोनॉमिक्स पीजी, वो उसने कहा कि पापा आई जस्ट वेस्टेड माय 2 years बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी एंड यू फोर्स मी टू टेक दिस वन इकोनॉमिक्स। मुझे बड़ा रिग्रेट हुआ, मैं उसको इमीडिएटली एडमिशन कराया। मैं बोला ठीक है यू टेक एडमिशन, उसको हमने करवा दिया एडमिशन। और सर को हमने कहा कि आपने जो कहा था शायद वही फलित हो रहा है। और आफ्टर कंप्लीटिंग हर साइकोलॉजी शी इज वर्किंग एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट।
तो आप इसको क्या कहेंगे एक्चुअली? और मुझे खुशी है कि उनका ब्लेसिंग हमेशा मिलते रहता है। तो मैं ईश्वर से अगेन उनके जन्मदिन पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हम डे टू डे वर्किंग में भी कनेक्टेड रहते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। और मुझे सर से बात करने के बाद बड़ा अमेजिंग फील होता, बहुत अच्छा लगता है। और उनसे जो प्रेम, जो भातृत्व प्रेम, जो स्नेह, जो गाइडेंस जो मिलता है वो अद्वितीय है एक्चुअली। इसलिए जन्मदिन के अवसर पर मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और सर को एक बार बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सर और प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सतेंद्र जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने साझा किया अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ। इसमें डॉक्टर सत्येंद्र ने जो बताया कि व्हाट वन शुड डू, इसमें है ना, नायक जी और नायक साहब एक बार किसी को लेके आए थे जिनकी बेटी को वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी, अगर याद हो तो वो बताएंगी तो अच्छा लगेगा। ये डिवाइन इंस्ट्रूमेंट जो हम बोलते हैं, लेकर एंटीना जिसका टेक्निकल नेम है, तो वो खुद ही अनम्यूट करके बताएंगी तो ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसी विद्या कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं, पहले ये पहले उनकी सुनते हैं। हाँ, हमारे वो मिस्टर महांती वो भी बहुत बिलीव करते हैं डॉक्टर अजय सिंह उनको। तो एक बार उनकी बेटी बहुत बोली कि हमको आईएएस देना ही है, प्रिपेयर कर रही थी, एक बार एग्जाम दी, बोली कि नहीं इस बार तो ऐसे ही दिए थे, सेकेंड टाइम हमको देना है। तो उन्होंने, मिस्टर महांती ने कहा चलिए डॉक्टर साहब के घर चलते हैं और उनसे कुछ कुछ पूछेंगे। तो उनकी बेटी भी साथ में गई। तो वहाँ पे वो उसने पूछा कि अच्छा मुझे आईएएस करना है, क्या करें? लॉ तो 5 इयर्स लॉ, इंटीग्रेटेड लॉ की थी वो। तो फिर डॉक्टर साहब ने देख के फिर बताया कि नहीं आप तो लॉयर नहीं रहोगे, आईएएस तो होगा नहीं, सिविल सर्विस होगा नहीं, और आप लेकिन लॉयर नहीं रहोगे। तो बिहाइंड द सीट की ऐसे कुछ आपने कहा था, एग्जैक्टली टर्म याद नहीं आ रहा है। तो हम लोग सोचे कि शायद जज के लिए कुछ बोल रहे हैं ऐसे वैसे, जो भी हो। उसने आके कहा नहीं 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 हमको तो प्रिपेयर करना है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सेकेंड टाइम भी दी, कुछ नहीं हुआ। वो अभी फिलहाल लॉ ऑफिसर है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो मे बी वही आप जो बोले थे लॉ में ही वो रिलेटेड ही काम की, तो वो अभी वही वो है। तो वो भी अभी बेटी को ली थी श्री श्री रविशंकर के, वहां पे कुछ छोटे बच्चों का कुछ प्रोग्राम हुआ था वहां पे। तो वो भी लेके गई थी, पूछ रही थी कि डॉक्टर साहब अभी है, अब लेकिन नहीं वो तो दिल्ली में है। तो वो कोर्स करवाने के लिए गई थी। तो उन लोग भी सब पूछते ही रहते हैं सब। चलिए, तो ये सब तो बहुत सारे इंस्टेंस है ऐसे। नहीं, sorry, I can speak, take 3 minutes about the antenna. Though I don't call it antenna, it must be having some better name. Antenna is just, we call it. I told our second meeting was important initially, because I didn't want to take much time. Now, since there is some time, I can narrate it. So I was with some other purpose, and my assistant is there. We are in the university, and Dr. Saib also has some assistant. My assistant was interacting with him, and in between, his father has some problem. He asked Dr. Singh that about his father's condition. Then Dr. Singh told this will take so much time. Other thing, I was not listening properly that time. I was discussing about some other program with his assistant. Then after some time, both the assistant, my assistant and Dr. Singh's assistant, they, because we have some program, they were busy in making the program. Then we just started discussion. Then at that time, my wife was having really a lot of problem about back pain. Then he started the antenna. Though I want to tell is a technical name, but I don't know it. That antenna. He asked me certain questions. He told me you have to just tell yes or no. Then I went and he was asking, telling yes, no, yes, no. Most time it was no. But after maybe 10, 15, 20 seconds, I only could tell yes. Practically. No. We are still in line? Yeah. So then about the treatment,
he told this the particular treatment is there, then where it can. He told generally it takes 5 to 6 sittings, and my wife can see the doctor, and she also practiced it. I told okay, no problem, then we'll come. But then he verified with the antenna, and then he found it would take more than 25. Then he stopped it because it generally doesn't happen. Not more than 9 times he expressed me. But afterwards, what happened? There is another, because that day it was some problem. So we reached around, which is generally 1 hour journey. It took 2 hours. Then I thought return is late night, maybe around 10 o'clock. So I thought I will have reach around 11:30, maximum 1.5 hours. He told no, it will take 2.5 hours. Then I was coming so nicely. Initially, I came around 10 kilometers from his institute to Noida. I thought then this time I am going to reach early. But exactly, then I ran to my wife from maybe after around 1 hour. Then I told this is the thing. Then exactly after 2.5 hours I reached. And to my assistant also he told, he generally 3 hour journey, he told no, reach only after 4:30 in the evening. That is meeting in the night. Then it happened, he reached only at that time. So then actually I also sent a small write-up. I think it was, he must have published somewhere. But after that antenna, so many things happened. He has anybody interested that as that friend, the another friend also visited. Even he in my company, he told about the big search MD and chairman. He gave some prediction, and that has also happened. But this I do not want to tell because I want to tell his other activities, which is really doing so nicely. Because teaching, giving blessing, these are things. This is a side one. This I don't give that important, but the other things are really what he's doing is very important, and it should be, he should continue because getting associated and convincing people to join art of living and other things and healing. This I am feeling every time my wife gets some sickness, she contacts Dr. Singh and she gets messages. I also see the message sometimes. Today also morning there is a message, I think. I saw it. Very, very nice, sir. Very nice. So, और है नायक जी, मेरे को आप बोलते जा रहे हैं, मेरे को अपने अपने एक्सपीरियंसेस याद आ रहे हैं. I am sorry, sir. सबका वही हाल है. जो भी Ajay sir, सुनते I'm हैं. sure next time onwards, Ajay sir is not going to let me be part of anything. You can't imagine such a nice treatment I get at their home. I don't feel it Every is time. Every time, we sir. are not, because we visited around, as I told, 20 sittings. We visited around 20, more than 20 times to their house. It was in their house, and we never felt, in the children's and Yes. madam, Yes, and yes, absolutely. we felt more homely than Anywhere else. close friends even. मैं बताऊं, हम लोग तो सर को, सर का घर इज, मैं तो सेकंड होम भी नहीं बोलूंगी, फर्स्ट होम बोलूंगी. एंड विद फैमिली, एंड आदित्य सिटिंग विद अस, बीपी सिंह सर, मैम, मतलब इट डजंट फील हम किसी दूसरे घर में गए, लगता है अपने ही घर में गए हैं. ना अच्छा लगता है. और वो It's जो आप always सब बोल रहे थे welcoming, ना, and sir positive is always energy. welcoming. Absolutely, absolutely. वो पॉजिटिव एनर्जी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप एकदम भूल हल्का हो जाते हैं. जाते हैं. बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल. अच्छा. मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेती हूँ सर, नाम नहीं लूंगी. मेरे कॉलेज के टीचर थे, तो 2012 में शी वाज हार्डली ट्राइंग टू गेट हर सन मैरिड ऑफ, एंड सारे पंडितों ने बोल दिया था कि हाँ बस अगले साल पक्का है, शादी पक्का है. अजय सर एट दैट टाइम, ही वाज द ओनली वन, ही यूज्ड हिज इंस्ट्रूमेंट एंड ही सेड 2018 में है. So obviously a mother who is badly trying to get her son married and everything is just ready and सब लोग कह रहे हैं अगले साल है. अजय सर was the only exception at that time जिन्होंने कहा था कि 2018 में है. And I mean that was one moment कि जब मैम को पता चला कि मैं सर के अंडर पीएचडी कर रही हूँ ना, तो मैम ने कहा कि सर जो भी बोलते हैं ब्लाइंडली मान लो, और सर कुछ भी नहीं बोलते हैं.
There's a reason behind everything that he speaks, and you just trust in him. And he actually got married in 2018. सारी तैयारी 2012 में हो गई थी, तेरा की सब कुछ था, बट फाइनली ही मैरिड इन 2018. आप प्रूव करने के लिए चाहोगे ना, हो सकता है इस बार गलत हो जाएगा, कभी हो ही नहीं नहीं हुआ सकता, है, हो ही नहीं हो ही सकता. नहीं सकता है। Very nice, very very nice. So I would request, the platform is open. अगर कोई बच गया है, या मेरी जैसे सर जो मुझे बोलते हैं कि इनके अंदर बुलबुले उठते रहते हैं, तो if somebody wants to vent out those bubbles in them, please use the platform. तो बहुत बहुत अच्छा लगा है हमें. आप जब बोलेंगे, वी कैन फॉर्मली कंक्लूड. आई एम श्योर ये सत्संग हम नहीं छोड़ना चाहते हैं. मनी मैम का मैसेज आया है. We can start the cake cutting. Ma'am, would you like to take it forward? I do have the conclusion, so please allow me 2 minutes to conclude after the cake cutting. So we can proceed for cake cutting right now. We can proceed for the cake cutting. सबके मन में इतनी मिठास घुल गई है सब कुछ सुन के. From all our side, sir, थोड़ा सा हम चाहेंगे मिठास आपके मुंह में भी घुल जाए हम सबकी तरफ से. So, Mani ma'am, please, you can let everybody know what you've planned. So we have ordered a cake and it is already reached sir's home. Sonia ma'am, आप Okay, I'll unmute. unmute कर सकते So हैं. you want me to cut that cake or what? Yes, sir, Yes, we would yes. like you to cut that cake and we all are there only in our spirit around you. आज आज सुबह गुरुदेव ने केक काटा है जो. Wow, amazing, amazing. आप और कोई केक काटने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने काट दिया था सुबह. आज हम लोग गए थे वहां पे. Okay, sir. Okay. गुरुदेव के साथ आज अपॉइंटमेंट थी. तो पहली बार 62 साल में ऐसा हुआ है कि गुरुदेव ने हमारा बर्थडे का केक काटा है जो है. 20 साल आर्ट ऑफ लिविंग के एक्सपीरियंस के बाद जो है. Amazing, amazing, sir. फिर भी आप कहते हो तो काट देते हैं. और हमारी कोई ब्लेसिंग नहीं होती है. ब्लेसिंग सिर्फ हम गुरुदेव की ही देते हैं. श्री श्री रविशंकर जी की ही ब्लेसिंग देते हैं. एक So एक you are the कोर्स. medium. आप मीडियम है. जी, सही, बस सही वर्ड का इस्तेमाल किया आपने. तो हमारा कुछ नहीं है. जो कुछ भी है वो गुरुदेव की ब्लेसिंग ही है, जिसको भी ब्लेसिंग मिली है. और मिरेकल्स भी उन्हीं के ही हैं. It is a transaction between you who receives it and the one who is giving it. So, श्री श्री रविशंकर जी क्या आपको देना चाहते हैं, किसके आप पात्र हैं, ये दोनों उसी ट्रांजैक्शन का आउटकम है. तो जिसने भी ब्लेसिंग ली है वो उसी का वो है. तो करते हैं केक कटिंग का, करते हैं. अगर आपको बीच में केक कटिंग करनी है तो ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला थोड़ा वो होता है, थोड़ा सा है. सोनिया तब तक कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं. सोनिया मैम, आप अनम्यूट करने की कोशिश करिए. हाँ, यू आर अनम्यूटेड मैम. सोनिया मैम ने लिखा है मे बी ओल्ड वर्जन. सोनिया मैम, वी कैन सी यू आर अनम्यूट, सो मे बी यू कैन ट्राई टू स्पीक. We'll let you know if you're audible. तो सोनिया मैम, आई एम श्योर आपके फीलिंग्स सर तक पहुंच चुके हैं, एंड वी ऑल्सो गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. मैम राइट्स, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड बर्थडे to our true guide, mentor, and guru. So, ma'am, आप चाहें तो you can call me and I can speak on your behalf. Yes, ma'am. Sonia, ma'am, you're not audible.
or maybe if we've had a lot of me talking, मनी मैम को भी आप बता सकते हैं. मनी मैम can speak for you. It's okay. One and the same thing. मैं फोन से ज्वाइन करता हूँ, उसमें कैमरा दिखाना थोड़ा आसान होगा, हाँ जी जी है सर. ना? और ये गुरुदेव का काटा हुआ केक भी है यहाँ पे कुछ, वो भी हमें भी आप दिखा लोग देख दीजिए. के जो है जी सर. ब्लेसिंग ले सकते हो उसकी जो है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैडम आप नहीं दिख रहे. Happy birthday, dear sir. Happy Happy birthday to birthday. you. God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear sir. थैंक यू गौरी मैम. बहुत देर से वेट कर रहे हैं. केक कब कटेगा? कंगन एक बार सबको बोला कैमरा ऑन करने, एक अगर फोटो हो जाए हाँ तो जी सर के हाँ साथ. जी हाँ प्लीज. जी. आई वुड रिक्वेस्ट मनी मैम, आपका अगर व्हाट्सएप ऑन है सिस्टम पे तो लेंगे. मेरा व्हाट्सएप ऑन नहीं हो पाएगा इस पे. One second. मनी मैम या श्वेता मैम, अर्पिता मैम, जो भी फोन से कनेक्टेड है, इफ यू कैन टेक अ फोटोग्राफ सो दैट इंस्टेंटली व्हाट्सएप पे आ जाए. I can take a screenshot from here. मुझे लगा हो गया स्क्रीनशॉट आप. Yes, I've taken a screenshot. थैंक यू मनी मैम. थैंक यू सर. सर आप मिनल हमें का भी. ब्लैंक आया था क्या? सर आप I'll केक take दिखा one दीजिए. more. One minute. I'll take one more. Meenal's camera was off that time. या Yeah, done. थैंक यू मैम. सर आप हमें भी केक दिखाएंगे ना? Namaste. सर का शायद कोई कॉल आ गया होगा. No, sir is cutting the cake. अच्छा. ओ वेरी नाइस. It's Are you able to see something? Mani ma'am. sir's video is not there.
हाँ हाँ अभी था सर, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। आ गए सर, आ गए। Happy birthday to you, sir. हैप्पी बर्थडे सर। सर आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे You're हैं। on mute, sir. गुरुदेव वाला देख पाए थे ना? नहीं केक सर, नहीं सर, दिखा दीजिए प्लीज। नहीं नहीं देख पाए थे। नो अच्छा, सर। ओके। हेलो आंटी, कंग्रेचुलेशंस, जय गुरुदेव। Jai Gurudev. हाय मैम, जय गुरुदेव। प्रणाम अंकल। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर आप म्यूट पे हैं। हाँ, थैंक यू एवरीवन। जय गुरुदेव, नमस्ते। थैंक यू सर मैं सर। फॉर्मल क्लोजर दे सकता हूँ, और we've had too much of me. So as we come as we come to the end of this beautiful gathering, it feels less like a conclusion and more like a continuation of the countless ways Sir continues to shape our journeys. Today's reflections have reminded us that the impact of a true teacher goes far beyond classrooms, meetings, or research papers. It lives on in the way we think, the way we question, and the way we carry forward the values that we have learned. Sir, on this special day, we may not always find the perfect words to express our gratitude, but please know that your guidance has left an indelible mark on each one of us. You have not only taught us what to learn, but how to learn, and more importantly, why it matters. On behalf of everyone present here, we wish you a very, very happy birthday, filled with good health, happiness, and many more years of inspiring minds and transforming lives. Thank you for being the light that shows the path and for walking alongside us as we find our own. Once again, wishing you a very happy birthday, sir. Thank you everyone for being part of this heartfelt celebration. Thank you. थैंक यू सर। हैप्पी बर्थडे Thank you, सर। sir. Happy Thank you, birthday. sir. थैंक यू एवरीवन। Thank you, everyone. Bye bye. थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Hina ma'am, Nayak sir, Satinder Thank sir, you. Mani ma'am, थैंक यू सर। Arpita जन्मदिन ma'am, की एक बार Gauri और ma'am. ढेरों शुभकामनाएं सर। Thank you so much, sir. थैंक यू। थैंक यू कंगन, थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग। थैंक यू। You can stop recording probably. Yeah.